can begin afresh. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So we'll start off from where we left. We're talking about how we completed shloka number 13 of third chapter. तीसरे अध्याय का 13वां श्लोका हमने complete किया था, where we are talking about remnants of yagna, that is prasada, how accepting Krishna prasada one can be released from all kinds of sin. Krishna prasad का सेवन करने से सारे पाप के रिएक्शन से हम मुक्त हो सकते हैं. And we also said that we are not proponents of vegetarianism. Our main aim is not to propagate vegetarianism, although Krishna prasadam is vegetarian by itself, but we are going beyond vegetarianism. Because it is more important that more than it being vegetarian, it must be Krishna prasadam. शाकाहारी होने से और भी उत्तम गति होना चाहिए कि कृष्ण प्रसाद होना चाहिए. केवल शाकाहारी होने से कोई फायदा नहीं है. So I talked about how in a book called Perfect Questions, Perfect Answers, a very famous person called Bob Cohen very proudly declares to Prabhupada that Prabhupada, I am a vegetarian. And how Prabhupada replies back, एक Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare Ram. Therefore, there will be some internet issues on and off. We will have to bear with it. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram. Hare. So we will move on to next sloka. So basically, we learned that our main aim is to take Krishna prasadam as the baseline and not vegetarianism as the baseline. We will do shloka number 14. Annad bhavanti bhuta Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna. So internet is playing a lot of games today with us. Anyway, we'll try to persevere and keep moving ahead with our discussion today. The shloka that I projected was shloka number 14 of chapter number 3. So all living bodies subsist on food grains. Annad bhavanti bhutani.
सारे जीव जंतु अन्न के ऊपर निर्भर हैं। विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेन, पर्जन्याद अन्न संभवः। तो अन्न कहाँ से आ रहा है? बारिश से आ रहा है, बारिश की वजह से आ रहा है। रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। और बारिश कहाँ से आ रहा है? वैदिक संस्कृति के और वेदों के प्रकार बारिश कहाँ से आता है? रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सैक्रिफाइस। यज्ञ के द्वारा बारिश आता है। एंड यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। यज्ञ कर्म समुद्भवः। और यज्ञ कहाँ से आ रहा है? कर्म समुद्भवः। तो कर्म के अनुसार यज्ञ हो रहा है। So Srila Baladev Vidyabhushan, a very great commentator of Bhagavad Gita, has also talked about Yagna Purusha. उन्होंने यज्ञ पुरुष के बारे में बात किया है, श्रीला बलदेव विद्याभूषण. And the personal beneficiary of all sacrifices is the master of all demigods who serve him as the different limbs of the body. तो यज्ञ का मुख्य भोक्ता कौन है? यज्ञ पुरुषा है. और यज्ञ पुरुष कौन है? यज्ञ पुरुष सारे जो यज्ञों का भोक्ता है और सारे देवताओं का वो स्वामी है. और देवता कौन है? देवता उस भगवान श्री कृष्ण का विभिन्न अंग है. They are appointed officers who manage material affairs. तो देवता कौन है? देवता वो है जो भौतिक जगत के गतिविधियों को संभालते हैं भगवान के नेतृत्व में. And Lord Krishna is worshipped. The demigods who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped. तो इसलिए जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे देवताओं का भी हम सम्मान करते हैं. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे very categorically बता रहे हैं. प्रभुपाद very categorically says that there is no need to worship other demigods. Not that you are disrespecting the demigods. ये नहीं कि आप मतलब उनको अलक्ष्य कर रहे देवताओं को, बट भगवान कृष्ण की जब हम पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे देवताओं का भी सम्मान हमने कर लिया है. So this is what Prabhupada explains in the purport of shloka number 14. So this shloka talks about Sankirtana Yagna is the prescribed yagna for Kali Yuga. तो purport में Prabhupada जी आगे बताते हैं कि इस युग में, कली युग में जो यज्ञ सबसे मतलब महत्वपूर्ण यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ. A person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material infections. तो जब कोई कृष्ण प्रसाद का सेवन करता है तो अब तक जो किए गए पाप हैं उन सब का रिएक्शन से पार हो जाता है. Further, food, grains or vegetables are factually eatables. तो और जब हम यज्ञ का आयोजन करते हैं तो उसमें कैसे पदार्थ को उपयोग करना है? फूड, ग्रेन्स, अन्न एंड द रिलेटेड मटेरियल्स और वेजिटेबल्स ये यूज कम कर सकते हैं. द फील्ड प्रोडक्शन इज ड्यू टू सफिशिएंट रेन एंड रेन्स आर कंट्रोल्ड बाय डेमिगॉड्स. तो जो भूमि में अन्न का उत्पत्ति होता है वो बारिश की वजह से होता है, वर्षा की वजह से होता है, और वर्षा देवताओं के गतिविधियों में एक है. The Sankirtana Yagna is prescribed for this age and must be performed to save us at least from the scarcity of food supply. तो प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कुछ नहीं है तो at least to have sufficient food grains. तो अन्न के अभाव ना होने के लिए हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए. Of course, Sankirtana Yagna is performed for the pleasure of the Supreme Lord. The highest goal is the pleasure of Supreme Lord. तो महानतम जो उद्देश्य है संकीर्तन यज्ञ का जब हम कीर्तन करते हैं वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए
हम करते हैं. So we'll go further. 15th shloka, which is a continuation of shloka number 14. So we will read shloka number 15. Karma brahmodbhavam viddhi brahmakshara samudbhavam tasmat sarvagatam brahma nityam yagne pratishtitam. So regulated activities are prescribed in the Vedas. कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यह ब्रह्म का मतलब है Vedas. Here see, so that's why we always have to read these things under the guidance of a spiritual master, because यहाँ पे ब्रह्म का असली मतलब है it is Vedas in this particular श्लोका. तो सारे हमारे गतिविधियां वेदों में उल्लेख है, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Brahma Akshara Samabhavam. Akshara मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनसे आ रहा है सारा वेद. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. Tasmat Sarva. Another name of Krishna is Yagna Purusha. So we have already learnt in the previous shloka, Yagnartha Karmano Anyatra Lokoyam Karma Bandhanaha. So we have previously studied in the one of the shlokas how यज्ञ के लिए, भगवान कृष्ण के लिए हम हमारा गतिविधियां नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ऐसे कार्य करेंगे जो माया के वश में हम आ जाएंगे और बंधन में फंस जाएंगे. सो द नेसेसिटी ऑफ वर्क कृष्णा ओनली, तो भगवान कृष्ण के संतृप्ति के लिए ही हमें सारे गतिविधियां करना है. द वेदास आर देयरफॉर कोड्स ऑफ वर्किंग डायरेक्शंस. तो वेद क्या है? वेद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारे लिए मार्गदर्शन है कि हमें कैसे कार्य निभाना है इस भौतिक जगत में, और धीरे धीरे कैसे हम आध्यात्मिकता की ओर हम जा सकते हैं. Anything performed without the direction of the Vedas is called vikarma. तो Prabhupada is very clearly telling here that अगर हमने कोई भी कार्य किया जिसमें कृष्ण का संतृप्ति का हमने पहला मतलब स्तर पे उसको नहीं रखा है तो इट्स विकर्मा. तो मतलब वो केवल इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. Such direction in the Vedas are directly manifested from the breathing of the Supreme Personality of Godhead. और वेदास और वेदों में ये हमारे लिए मार्गदर्शन किसने दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने दिया है. उनके श्वास से वेद का उत्पन्न हुआ था. The Lord being omnipotent can speak by breathing air. और क्योंकि कृष्ण ऐसे पुरुष है जो हर एक सेंस से दूसरे कार्य कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन ब्रह्म संहिता इट इज सेड अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, मतलब वो एक अंग दूसरे अंग का काम कर सकता है. तो और केवल श्वास लेने से भगवान बात भी कर सकते हैं, वेद का उच्चारण कर सकते हैं. His directions in the Vedic wisdom as to how such conditioned souls can return home back to Godhead is prescribed for human beings. तो मानव जाति के लिए ये वेद नियम और मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने दिया. Even those who cannot follow the Vedic injunctions may adopt the principles of Krishna consciousness, and that will take the place of performance of yagnas or karmas. तो अगर कोई मतलब वेद के अनुसार नहीं जाना चाहता है लेकिन वो कृष्ण भावनामृत के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर लेता है, सारे वेदों का नीति नियम हमें जानने की जरूरत नहीं है. कृष्ण भावनामृत में जो प्रभुपाद जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है, केवल उस मार्ग में चलने से
तो वेद यज्ञ करने के बराबर हमें प्रतिफल मिलता है. So this is what Prabhupada says in this purport. Very good learnings are there in this past two slokas that we read. We'll try to do that. So mechanistic explanation and personal explanation are not contradictory. Mechanistic explanation means what? What the scientists say, how this world works. So scientists only talk about how the world is working. Who is behind the work? They do not talk about. So personal explanation gives who is behind this wonderful work that is happening in this entire universe. तो एक एक्सप्लेनेशन होता है जिसका नाम है मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन, जो इस भौतिक जगत में सब कुछ कैसे चल रहा है वो संशोधन से, देखने से, अनुमान से वैज्ञानिकों ने हमें सारे एक्सप्लेनेशन दिया है. और एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन है जो वेदास हमें देते हैं. वेद उसकी बात करता है ये सब जो अद्भुत कार्य हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है. मतलब what Prabhupada is trying to tell is both are talking of the same thing. One is talking about how things are working and another is talking about the things are working so wonderfully because there is somebody there who is in complete control of what all things are going on. एक ऐसे व्यक्ति है, भगवान है, जिसके मार्गदर्शन में ये सब अद्भुत कार्य इस भौतिक जगत में हो रहा है. So science and spirituality are complementary and not necessarily antagonist. तो विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों एक दूसरे को मतलब मेल जोल करते हुए आगे जा सकता है, वो एक दूसरे के तद विरुद्ध नहीं है. So karma or duty is not just to take care of family members. तो कर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अपना देखभाल कर लिया और हमारे परिवार वालों का देखभाल कर लिया. We have to connect to God, which is a privilege to human life. तो हमें और भी आगे जाना है, केवल परिवार नहीं, फिर हमारे समाज से आगे हमारे राज्य के आगे हमारे राष्ट्र के आगे हमारा विश्व मानव हमें बनना है. So that is possible by being Krishna conscious. तो ये कैसे पॉसिबल होगा? कृष्ण भावनामृत में हम जब हमारे गतिविधियों को हम करेंगे ये संभव है. So Lord is not directly visible to us because he is spiritual. भगवान हमें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो आध्यात्मिक है और हमारा जो सेंसस है, our level of consciousness is material, और हमारे जो इंद्रिय है और हमारा जो चेतना है वो अभी भौतिक स्तर पे है, इसलिए हम भगवान को नहीं देख पाते. तो हम भगवान को हमें देखना है तो हमें क्या करना होगा? So what should we do? Scriptures are the connecting link between spiritual realm and material realm. तो भौतिक जो स्तर है और आध्यात्मिक स्तर है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है, और वो ब्रिज क्या है? वो वेद शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स है, भगवत गीता है. So spiritual wisdom is not theoretical, it is transformational. तो केवल एक मतलब लिटरेचर नहीं है, आध्यात्मिक पुस्तक या आध्यात्मिक मार्गदर्शन वो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, एक मतलब हायर लेवल पे वो बदल सकता है. So it is transformational. And Krishna is the source of everything. कृष्ण भगवान सबका स्रोत है. He is the source of everything. And human beings can access the absolute truth through the performance of yajna. तो इस भगवान को प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ का सहारा हम ले सकते हैं. और कलयुग में, इन कलयुगा, the most important of the yajnas, in fact the only yajna that needs to be performed is संकीर्तन यज्ञ. तो कलयुग में केवल एक ही यज्ञ हमें करना है, वो है संकीर्तन यज्ञ. हरे कृष्ण महामंत्र का जपा, हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन. That is why we organize Krishna live sessions every week. We organize this kind of online sessions every week. Why? Because this is a part of Sankirtana Yajna. ये संकीर्तन यज्ञ ही
कहलाता है। जब आप ऐसे क्लासेस अटेंड करते हैं, जब आप कृष्णा लाइफ सेशन संडेज अटेंड करते हैं, या कोई भागवतम क्लास आप अपने मंदिर में अटेंड करते हैं, ऑल दिस कम्स अंडर संकीर्तना। एंड ऑफ कोर्स चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र एंड कॉन्ग्रीगेशनल संकीर्तन और सामूहिक संकीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन, और हम being alone when we do japa, Hare Krishna mantra, that is also a part of Sankirtana Yajna. And for Kali Yuga, it is recommended and is the most important of yajnas. So Lord Krishna is the Yajna Purusha, और इस यज्ञ के जो मुख्य भोक्ता है वो भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उसको यज्ञ पुरुष बोलते हैं। When we take prasadam, we protect ourselves from material nature. तो जब हम प्रसादम का सेवन करते हैं तो हम भौतिकता के स्तर पे नहीं रहते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड प्रसादम इज लाइक अ वैक्सीन। आजकल जैसे कोविड की वजह से हम वैक्सीन ले रहे हैं, तो मटेरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें प्रसादम का वैक्सीनेशन लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डिजीज ऑफ मटेरियलिज्म। We must take the vaccine of prasadam and we must perform the yagna called Sankirtana Yagna in Kali Yuga. So we will move ahead to shloka number 16. I'll share it on your screen so that it is easier for you. Evam pravartitam chakram nanuvartayati haya aghayur indriyaramo Mogam partha sajivati. Very notable. Aghayur indriyaramo mogam. So what does it mean? My dear Arjuna, hey mere pyare Arjun, a man who does not know this prescribed Vedic system of sacrifice certainly leads a life of sin. Evam pravartitam chakram न अनुवर्तयति हया। मतलब ये वैदिक गतिविधियां जो नहीं जानता है, यज्ञ के बारे में जो नहीं जानता है, तो उसका क्या हाल है? Certainly leads a life of sin. अघायुर, अघा मतलब sinful, तो वो पाप भरित जिंदगी जी रहा है। For a person delighting only in the senses, इंद्रियारामो lives only in vain. मोगम पार्थ सजीवति, उसका जो केवल इंद्रिय तृप्त के लिए जीवित है, उसका जीवन मतलब किसी काम का नहीं है, एक दुर्बल स्थिति है उसका, और वो इस जिंदगी को, मानव जिंदगी को नष्ट कर रहा है। So we'll move ahead with the purport. So what is Prabhupada telling us in the purport here? The Mammonist philosophy of work very hard and enjoy sense gratification. Eat, sleep, drink, be merry. Who has seen tomorrow? कौन देखा है कल क्या है? तो आज हमें खूब खाना चाहिए, खूब पीना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए, और जो मन में आए वो करना चाहिए। ऐसे थियरी को बोलते हैं मैमोनिस्ट थियरी, मैमोनिस्ट फिलॉसफी। तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एंड इट इज कंडेम्ड हियरिन बाय द लॉर्ड। तो भगवान कृष्ण खुद यहाँ पे उसको मतलब दुत्कार रहे हैं कि ये भी कोई जिंदगी है जो केवल अपने इंद्रिय आराम के लिए जीता है। कृष्ण इज कंडेमनिंग इट। वन हु डज नॉट फॉलो सच रेगुलेशंस इज लिविंग ए वेरी रिस्की लाइफ। रूपा जी बोलते हैं वो एक बहुत अपायकारी जिंदगी जी रहा है, कभी भी वो उसका मानव जीवन खत्म हो सकता है, और क्योंकि उसने सफिशिएंट पुण्य कार्य नहीं किया, सफिशिएंट भौतिक आध्यात्मिक गतिविधियों में उन्होंने भाग नहीं लिया, पता नहीं कौन सी योनि में उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। So it's a very scary situation. Prabhupada says a very risky life. A person who is leading on pure materialistic life is leading. So Prabhupada says that a life in vain, materialistic life. तो ऐसे भौतिक जिंदगी मतलब उसका हम मानव जीवन का
नष्ट कर रहे हैं ऐसे जीवन जीत के। तो बाय नेचर्स लॉ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ और उसके अनुसार तीन मार्ग है, कर्म योग, ज्ञान योग और फाइनली भक्ति योग। So if in any of these three ways, when we connect ourselves with the Lord, then we can make our life very successful. The yajna system is planned in such a way, the yajna system is planned in such a way that sensory conscious persons may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction. तो यज्ञ वेद में जो दिया गया है कर्म कांड से, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, वो स्टेप वाइज हमें मानव जाति को एक स्तर से दूसरे स्तर पे लेके जाता है। तो इससे क्या होगा, इंद्रिय तृप्ति से प्रारंभ करके फिर हम भगवान की तृप्ति तक हमारी जिंदगी को मोड़ सकते हैं। So that way the person will not be implicated when he is doing it under directions. The prosperity of the world depends on not just our efforts but on the background arrangement of the Supreme Lord directly carried out by the demigods. तो हमारे जो सुख और दुख है वो केवल हमारे कार्यों से हमें नहीं मिल रहा है, तो हमारे पूर्व कर्म है और उसके ऊपर भगवान की देख रेख में देवता है, ये हमें प्रदान कर रहे हैं सुख और दुख। One should not therefore limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं और प्रभुपाद जी परपट में यहाँ बोल रहे हैं कि केवल कर्म कांड में ही हमें उलझना नहीं चाहिए, उससे आगे हमें बढ़ना है कर्म योग की तरफ, फिर भक्ति योग के स्तर पे आना है और हमारी मानव जीवन को हमें सक्सेसफुल बनाना है। So this is what Prabhupada talks about in sloka number 16. So let's try to recap sloka number 16 here. So there is a very famous adage called "We must live for the moment," or living for the moment. So Prabhupada is very clearly mentioned here that that's a prescription for chaos. जिस सिर्फ इस समय के लिए हम जी रहे हैं, आगे की नहीं सोच रहे हैं कि केवल हमें इंद्रिय तृप्ति पाना है, बस अभी हमारा देखभाल हमें करना है, ऐसे हम जिंदगी जिएंगे तो एक्चुअली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। हम एक घोर अफगात की तरफ हम जा रहे हैं, तो कोलाहल की तरफ हम जा रहे हैं। सो लिबर्टी फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी इज स्लेवरी टू इररेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे व्यक्तियां जो कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, जो मतलब अपनी जिंदगी को सुधारना नहीं चाहते हैं, मानव जिंदगी का पूर्ण उपयोग नहीं करना चाहते हैं, दे आर इररेस्पॉन्सिबल पीपल। सो दे थिंक दैट दिस इज फ्रीडम, ये लिबर्टी है। तो लिबर्टी फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज, प्रोपा से लिबर्टी फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि यही फ्रीडम है, क्यों इस सब में उलझना है, हम फ्री रहना चाहते हैं। सो एक्चुअली उनके लिए क्या हो रहा है, दे आर बिकमिंग स्लेव्स टू इररेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो अधर्म कार्य वो कर रहे हैं उसमें वो बंधे जा रहे हैं, तो एक्चुअली वो स्लेव्स बन रहे हैं इररेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। So sensuality is like the rust that blunts the axe of our consciousness. तो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जब हम जिएंगे तो वो एक रस्ट की तरह है, जो लोहे को जंग लग जाता है तो वैसा है, और जब एक्स को जंग लग जाता है उसको काटने का शक्ति वो खो देता है। So it will lose the power of cutting. So when we become purely only sensual and not spiritual, then we lose the power to, go higher in our life. Those who make pleasure the purpose of their life make their life
पर्पसलेस। तो जो अपने जिंदगी में केवल इंद्रिय तृप्ति और आराम ही पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन को वो बिल्कुल बेकार कर रहे हैं। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड लॉर्ड कृष्णा इज यज्ञेश्वरा। तो कृष्णा इज टेलिंग अहम ही सर्वयज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च। इन द 9th chapter श्लोका नंबर 24, कृष्णा सेज मैं यज्ञेश्वर हूं, मैं ही सारे यज्ञ का भोक्ता हूं, मैं ही सारे जीव जंतु का प्रभु हूं। एंड ऑल्सो इन द 5th chapter इन द एंडिंग he says भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम नात्वा माम शांति रक्षति। तो हमें अगर चैन की जिंदगी जीना है, 3 चीजें हमें ज्ञात होना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, केवल कृष्ण सारे यज्ञ के, सारे तपस के भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों का वो एकमात्र स्वामी है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीव जंतु का वो सुहृद है, मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है। सो इज द फ्रेंड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। All living entities, we are not only talking of human beings, every living entity is a friend. He is always wanting good for all living entities. So you see, just yesterday I think we came to know that there is an impending war, or a war has already started off between Russia and Ukraine. Why is all this happening? सर्वलोका महेश्वरम, ये बात हम भूल गए हैं। People have forgotten that Krishna is the master of all the universes. Everything belongs to Krishna. ये तेरा, ये मेरा, like how it started off Bhagavad Gita, first sloka. What does it say? मामा का पांडवाश्चैव, मेरा और पांडु का, पांडु पुत्रों का। इसके वजह से युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र युद्ध। और हम देखेंगे कि सारे युद्ध इस जगत में जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है अभी, वो केवल इसी मेंटालिटी की वजह से है। मामा का मत और मेरा और आपका, ये मेरा और ये आपका, और मेरा श्रेष्ठ है और आपका मतलब कोई मायने नहीं रखता है। सो कृष्णा इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल यज्ञास। So there was a question in the due course last week. Somebody asked, Prabhuji, what is the difference between crime and sin? अपराध और पाप, इसमें क्या डिफरेंस है? So you see, crime is something that is related to legal aspects of things, or sin is something that is related to the moral aspects of things. मतलब जो अपराध है, अपराध क्या होता है? अपराध वो होता है जो संवैधानिक नहीं है। और पाप क्या होता है? जो भौतिक स्तर पर संवैधानिक नहीं है, वो भी संवैधानिक है, लेकिन ये आध्यात्मिक स्तर पे संवैधानिक नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल एबॉर्शन, एबॉर्शन तो पाप है। आध्यात्मिक स्तर में तो वो पाप ही है, इट्स अ बिग सिन, एबॉर्शन। बट व्हेन इट कम्स टू क्राइम, then in some countries abortion is legal, so it's not a crime there. तो देखिए, वो भौतिक स्तर पे वो अपराध नहीं हुआ। सो अपराध कार्य है, मदिरा पीना पाप कार्य है वेदों के अनुसार, लेकिन ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं जहां पे पीना मतलब संवैधानिक है, मतलब इट इज नॉट अ क्राइम, इट इज अलाउड लीगली। So you see, I hope you're getting the difference between crime and what is called as between crime and sin. Another example can be cow killing is a sin. वो तो घोर पाप है, no bigger sin than cow killing.
today, Hare Krishna. I think today we had a very not so good time with internet, and I think it was off and on for most of you. For me also, it has been off and on. So with whatever that was possible, I've tried to complete this session. Thank you very much for joining me. Hare Krishna. Hare